So today's topic is banking and financial service and insurance. So in the agenda, I wrote, first thing we'll talk about is insurance. So I think this is a continuation of our this. I mean, part of it might be continuation of our previous talks. That what do you think about insurance industry now? To start with, medical insurance industry, which probably is becoming a need now, I think, for a lot of people. But I guess अभी का जो टाइम है बहुत सारे क्लेम्स आ रहे होंगे, तो इसके हिसाब से हमें क्या बोलना चाहिए, लॉस में है, प्रॉफिट में है, क्या होगा? लेट्स हियर फ्रॉम एवरीवन वन बाय वन. अभिषेक, व्हाट डू यू थिंक? मेरा कहना है कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी को लेकर ये हर किसी के मन में रहता है कि जब आप इंश्योरेंस कराने जाइएगा तो उस समय कुछ और बोलते हैं, लेकिन जब एक क्लेम करने जाइएगा तो एकदम टोटल 360 डिग्री मूव करने लगते हैं। और एक चीज और है कि हम देखें मैक्सिमम इंश्योरेंस जो होता है अभी तक हम देखें कि उसका बेनिफिट आपको मरने के बाद मिलेगा। कि जैसे हम एजुकेशन लोन लिए थे तो वहां पे 5-7 हजार का इंश्योरेंस किया था क्या कि अगर स्टूडेंट डेथ कर जाता है तो आपको वो लोन नहीं चुकाना पड़ेगा। और वो मैंडेटरी था, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास ऑप्शन था कि वो चीज हम चूज करें या ना करें, उस चीज को मैंडेटरी की हुआ था। तो मेरा इंश्योरेंस को लेकर अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता है, क्योंकि जब इंसान ही नहीं रहेगा तो वो इंश्योरेंस किस काम का। और जहां तक बात है वो बहुत जल्दी पलट जाते हैं, मतलब जो वो बोलते हैं उसका 50% भी वो नहीं दे पाते हैं। Nandan, what's your comment about insurance? As you asked me about what type of insurance, can you explain? Can you repeat the question once? Medical insurance. Yeah. Take, let's say, right now because of COVID and all, maybe there are Okay. a lot of claims. So, what do you think about this insurance industry? Sir, as in the America, there will be an SSN number for there will be a database where all the insurance will be taking place from the other agencies. It was a mandate in the America, like the insurance is mandate. Then as in COVID, the insurance is more from the hospitals, but here the insurance is not mandate, I think so. So the reason different hospitals and different are giving the insurance as in COVID, but they are charging for other things like for the bed, for the day purpose, for all the things. I would think more has to be changed, I think so. Okay. Mr. Hari, you have any comment? Yes, actually, insurance as such, I believe both it has the positive as well as its own disadvantages as well. So advantages, as he rightly said, जब अभिषेक जी ने लोन लिया था एजुकेशन लोन, so he has given an insurance by default. So just like Abhishek ji and many others, so in case of untimely sad demise of the borrower, तो रिस्क जो है दोनों तरफ ज्यादा होता है कि borrower either the bank will approach the guarantor or maybe the family members of the borrower. So ऐसे situation में it looks very unkind or it looks bad कि already after the death of some person they are approaching for the recovery. So for that reason जो है finances और banks already जैसे ही कोई बड़ा loan करते हैं, so they by default take the insurance also. Most of the banks do that because risk reduce होता है उससे, जो कि ऐसे situation में insurance claim कर सकते हैं आप.
सो बैंक का प्रिंसिपल अमाउंट जो है और वो तो उसको मिल जाएगा, और फैमिली मेंबर्स जो है उनको भी परेशानी नहीं होगी इन फ्यूचर। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इंश्योरेंस में एज सच कहीं पे भी एकदम चार्जेस एकदम हाई फाई या बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं होते। दे यूजुअली वर्क ऑन लाइक प्रीमियम, नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप ऑफ थिंग। कि इंश्योरेंस में कंपनीज में एज सच प्रॉफिट दिखाना मीन्स इट्स नॉट दैट लाइक पॉसिबल, बिकॉज जैसे आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देखते हैं और उसका जो बेनिफिट देखेंगे, सो बहुत फर्क होता है दोनों में। दैट इज द थिंग। और या बट जो प्रॉब्लम्स होती है क्लेम में, वो तो दैट इज देयर एक्चुअली, वो होता ही है, बिकॉज देयर आर सम इंश्योरेंस कंपनीज हु आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली और प्रॉफिटिंग में जो है ज्यादा ये करते हैं। तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन इंश्योरेंस सेक्टर का नाम बहुत खराब है मार्केट में, कि इंश्योरेंस लेने बेचने आया है मीन्स ये पैसा, इंश्योरेंस इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एक्सपेंस। उसको सेविंग में भी हम लोग नहीं ले सकते बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस टू द पॉकेट, क्योंकि आपको जीते जी उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। सो दैट इज द थिंग insurance, and yeah, that is like I have a neutral view. It's okay ki you can have a relaxed and tension free life if you are insured. Actually that is the only benefit of insurance, क्योंकि आपने अभी 4 व्हीलर है, आपका 2 व्हीलर है, उसका इंश्योरेंस अगर करके रखा है तो कल को आपका गाड़ी चोरी भी होता है, you shouldn't be worried. You can claim for that IDV, in like insure derived value, whatever is insured derived value is there, that you will get. तो आपका सिक्योर रहता है, प्रॉपर्टी हो, एसेट्स हो, लाइफ, आपका जो लाइफ से रिलेटेड जो भी है थ्रेट्स, डिजीजेस है, वो सब कवर हो जाता है उसमें। दैट इज द ओनली बेनिफिट आई थिंक। Sejal, you have any comment on insurance industry? सर एक्चुअली इंश्योरेंस सेक्टर में मेरी नॉलेज काफी कम है, तो आई वुड लाइक टू लिसन मोर। You're not audible, I think. Now This is for Yeah. Sejal is speaking. Yes, then Atul sir can. Yes, Sejal. सर इंश्योरेंस सेक्टर में मेरी नॉलेज काफी कम है, so I would like to listen more. Okay. Yes sir. Yes. So Atul sir, what do you think? Is insurance a scam? Understanding of insurance है कि it's a shared distribution of risk. So we all know कि we have risk. जान जाने का रिस्क है, रोड में एक्सीडेंट होने का रिस्क है, and a lot of risks which can happen anytime. कभी भी जान जा सकती है, मतलब किसी भी तरीके से, बीमारी से या गोली से या एक्सीडेंट से। तो उस रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक तरीका है इंश्योरेंस, कि सब लोगों ने छोटा सा एक परसेंटेज अपने इनकम का कंट्रीब्यूट किया, लेकिन कोई कैटास्ट्रोफिक रिस्क हुआ, अचानक फैमिली में जो मेन ब्रेड अर्निंग पर्सन था, ही और शी इज नो लॉन्गर देयर, तो पूरी फैमिली डिवास्टेट हो जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस लेकर रखा है तो फैमिली विल गेट सम सपोर्ट। एंड इंश्योरेंस भी बहुत टाइप के होते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस ज्यादा लोग जानते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस होता है, कार का इंश्योरेंस होता है। तो जितना जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके लिए ज्यादा इंश्योरेंस देखिए बड़ा है। जैसे कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया इज LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में सब लोग मेंबरशिप लेते हैं, क्योंकि सब हर इंसान को पता है कि कभी भी कुछ दुर्घटना हो तो और उनके देखिए कि एजेंट भी पूरे चप्पे चप्पे में फैले होते हैं, लाते हैं, और लोग खरीद भी लेते हैं, बिकॉज हर इंसान चाहता है कि किसी भी क्राइसिस, अचानक किसी की फैमिली में डेथ हो जाए या कोई भी अगर अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, तो पूरी फैमिली की लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो, थोड़ा तो डिस्टर्ब होगा ही, लेकिन फाइनेंशियली पूरा फैमिली बैंकरप्ट नहीं हो जाए या रोड पे नहीं आ जाए। तो इंश्योरेंस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइफ इंश्योरेंस भी, हेल्थ इंश्योरेंस भी और कार इंश्योरेंस भी। बट अलग अलग
अलग अलग रिस्क होता है, तो लाइफ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है, लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आता है आपका कार इंश्योरेंस। और आजकल तो आपके हर चीज में इंश्योरेंस होता है। इवन आप फोन भी खरीदते हैं, एक आईफोन खरीदते हैं तो उसमें भी आता है वारंटी कवरेज, लैपटॉप ले रहे हो उसमें भी कवरेज आता है, तो हर चीज में इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस में कोई खराबी नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि इंश्योरेंस लेने वालों को समझना चाहिए कि उनकी रिस्क एपेटाइट क्या है और उनकी लाइक्लीहुड ऑफ रिस्क क्या है। कि अगर मान लीजिए कि मैं एडवेंचर बहुत करता हूँ, मैं माउंट एवरेस्ट पे जाता हूँ, बहुत ज्यादा बंगी जंप लेता हूँ, तो बहुत हाई रिस्क हूँ, तो मेरे लिए बहुत सेंस बनता है कि मैं एकदम ज्यादा इंश्योरेंस लेकर रखूं। लेकिन कोई इंसान अगर बहुत ही नॉर्मल सेफ लाइफ ले जीता है तो वो थोड़ा सा कम लेंगे। लेकिन अचानक मौत तो किसी की भी कभी भी हो सकती है, तो हर इंसान को इंश्योरेंस लेना चाहिए, बट अलग अलग आपके प्रोफेशन, आपके हेल्थ, आपके एज, आपके जेंडर, बहुत सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे अलग अलग लोगों को अलग अलग इंश्योरेंस की जरूरत है। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। Okay. Muskan, do you have a take on insurance? No, sir, actually, I don't know much about this sector. Mhm. But yeah, sir, I don't know much about this sector, so I will listen to all yours. So let me explain a bit. Yeah, sure. We can, discuss more. Okay. So there are two types of insurance broadly. One which pays after, let's say, life insurance. I'm talking about life insurance now. There is insurance in which you get nothing if you are alive. You just pay and enjoy the, let's say, a good peace of mind कि अगर कभी मर गए तो फैमिली को इतना पैसा मिल जाएगा. Premium is quite less compared to an insurance in which you get something by 15 years, 20 years, and the life coverage, I mean, insurance coverage might be stopped when the duration matures, or it can continue also depending on the कैसा इंश्योरेंस लेते हैं हम लोग. तो ये हो गया, उसका उसका रिटर्न थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है एक्चुअली. और कंपेयर टू द प्रीमियम, let's say if I'm paying 40-50,000, it might be like 10-15 lakh 20 lakh insurance. Whereas if I go for a term insurance, which is like I will not get anything unless I am dead. And if I am spending same amount of money, 50-60,000, yeah, to be the similar premium, it's the coverage gets 10 times. So that is known as term insurance. ठीक है, so term insurance है, endowment plan है, या जो भी और भी plan है. So this term insurance means once you are terminated, then only you reap the benefits, and this can be a one time premium or like yearly premium. हर साल एक प्रीमियम दीजिए आप और चैन का नींद सो जाइए. ठीक है, तो जो अभिषेक ने एग्जांपल दिया एजुकेशन लोन का, तो जो 7,000 या जो भी लगा उसका, दैट वाज अ टर्म इंश्योरेंस कि अगर if you take education loan of, let's say, 4 to 5 lakhs, then they will do a term insurance of probably a single premium term insurance that is costing you whatever 5-10,000 rupees or maybe more, and you have to pay that. So these are all kind of processing fee plus insurance charges. ऐसा हो गया तो बैंक ने एक तरह से सिक्योरिटी कर लिया, अपने आप सिक्योर कर लिया कि अगर इसको कुछ हो गया डेथ वाइज, तो then he gets the I mean they get the insurance claim. Yes, Nandan, please. Sir, if you complete, I would like to ask a question. Please. Okay, You can ask. sir, I would like to ask a question to Atul sir. Yeah, Sir, Atul you can sir ask is now. there? Yeah. Sir, as American government, like the Barack Obama has introduced the insurance there as a mandate. As an insurance base, they came to know so many things about the person, like the what was the company, what was the status, what was the customer ID. With the help of SSN numbers, they can able to know everything about the person, and they there was a data, a huge data about the people with the government of the America. Why not the Indian government have not did this as an government, as an high end? Why
what were the lagging things? What was your thoughts on those things? Sure. The fact that US government has a lot of data about its population, so that has two sides to it, both plus and minus. In these days, people are very, very concerned about privacy, because if government knows everything about you, then I'll give another example, like in good old United States, USSR, or let's say we currently in China. So China is an example I will contrast to. So China knows everything about you, who you are, what age, sex, gender, income, address, even your likes and dislikes. So whether you like the president of China or not, if you don't smile when you see the photo of Chinese president, then also it gets the penalty. So China is the worst case scenario of how the worst privacy violation can happen. The US is a country which values privacy before anything else. It's very, very, people are very, very paranoid about privacy, but doesn't mean that US doesn't have, so US has a system called social security number. So if you have a social security number of a person, you can know everything about that person, their credit history, their bank account, their driving history, their health record, everything else. So one, I gave the example of China, the extreme, then USA, which also, but they also have a huge privacy laws. And from time to time, privacy breaches have happened. Very large insurance companies in US, one of the largest, Aetna, Cigna, and many often very large companies, let's say Walmart or Target, many large companies, they have had privacy breaches where customers' name, credit card, or phone number, everything, all the numbers were hacked by people. So and then India is slightly behind that. When India started to do this through the Aadhaar, where almost it was the largest, I think, identity project in the world, where almost not completely yet, but almost 1 billion people have a unique ID. That's the biggest ever collection of providing ID and collection of data about people. So each person, to get an Aadhaar card, they had to get a photograph and they had to give all their personal details. And there was a challenge. I remember, I forgot the name of the person, a very famous cyber expert, security expert. So he challenged the head of Niti Aayog, Amitabh Kant. So Amitabh Kant had given a challenge on his Facebook post. So I'm connected to him. So I saw that he hacked he hacked Niti Aayog database, and he said he gave Amitabh Kant's phone number and everything else, that it's not secure enough. So the reality is that privacy is a very important concept, but at the same time, public service is also important. So the balance has to be struck. So how much are you willing to compromise between your privacy and how much of the value which you derive from sharing your data, that needs to be done. Because if our health data is being collected by the government, or let's say hospitals, doctors, then that helps them, because using the past data, they can avoid, come up with better treatment, they can avoid future ailments. And many of the diseases have been eliminated from the world, like malaria and many polio and many others, because of so much of data. But what has happened is that in the current age, technology has advanced so much that the hackers are always, we're always ahead of the पूरी दुनिया में जो लोग थे वो हमेशा से पुलिस से एक स्टेप आगे रहते हैं, गवर्नमेंट से हमेशा आगे रहते हैं. लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के चलते क्या हो गया है, व्हाट हैज हैपेंड इज कि a chore anywhere in the world, a cyber crime criminal in India or in Africa, he or she can hack a data anywhere in the world. So privacy has become big risk for people. So people who really care about privacy, they should protect their privacy, and it's a very important thing. But coming to this current topic, it's like hard to avoid unless you are the richest guy in the world and you can live in an island, build an island in Hawaii or somewhere else, nowhere else can. It's very hard to avoid being if on a $25, a very small nominal amount, I can get all the details, even social security number, every detail, your medical record, everything on a small nominal amount. Somebody, if they want, they can hack your data, they can get your data. So the battle of privacy is literally dead. But people who have a lot of money,
they will invest a lot of money to so that they can remain private. And many people, that's why they buy islands. That's why I have these very private villas and homes. They don't want to live in an apartment community. They don't want to live in a very public space, or they don't want to even be seen in public. But if you know, like Princess Diana or many celebrities, one of the worst fears they have is like anytime they're going, they're scared about all the forget what to call that, photographers who stalk the people who are behind them, trying to capture the photo, trying to capture the children. Like even an Ambani family, or this guy was Aishwarya Rai. Now Aishwarya Rai बीमार पड़ गई तो पूरी दुनिया को पता है, और ऐश्वर्या राय की जो बेटी है उसके बारे में तो whole world is concerned about. So there's a choice to be made. If you love privacy, then avoid any public interaction and don't even join any WhatsApp group, Facebook group, Telegram groups. Just go and live in an island. Don't interact with anybody else. You really love that privacy. But if you want to have any social interaction, if you want to have social services, then your privacy will have to sacrifice some of your privacy. That's what I wanted to share. Yes, Sajal, you have a comment? Sir, actually, I have a question. Sir, मतलब मुझे ये जानना है कि इंश्योरेंस सेक्टर का प्रॉफिट मॉडल क्या होता है? मतलब ओके, आई नो कि जो इंश्योरेंस क्लेम नहीं करते हैं उनसे प्रॉफिट आता है, बट आई वांट टू नो कि और भी कुछ होता है. ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. We can take comments. Am I audible? Yeah, you're audible. I think थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है, but I can make out what you said. Yeah. हाँ, तो मतलब इसके अलावा कोई और प्रॉफिट होता है या नहीं होता है? बताता हूँ. क्योंकि मैंने ये सुना है कि जो हर इंश्योरेंस पे जो भी एजेंट होता है उसको काफी ज्यादा कमीशन मिलता है. So I want to know where that commission comes from and what's the back history. Sure. Yeah. So from my knowledge and my understanding, जो commission is basically it's a sales commission. To lure the agent, it's like a salesperson used to. और पहला premium, usually let's say the insurance is 10 years, 15 years, 20 years plan. Okay, and premium is let's say 50,000 or 1 lakh a year. तो 1 लाख प्रीमियम है, तो बेसिकली 20 लाख का प्रीमियम कलेक्ट कर होगा उस एजेंट की वजह से. तो पहले साल का जो प्रीमियम होता है उसमें आई थिंक दे गेट ऑलमोस्ट 50 to 60%, maybe more a bit. I think it depends from company to company. They get a huge margin in the very first premium जो भी करवाता है. ठीक है. So this is how the agent gets the money. How insurance companies make money is you have to understand the whole cash flow business. तो ऐसा है कि इंश्योरेंस ने अगर 20 साल का आपने साइन अप कर लिया, तो बेसिकली यू आर पेइंग एवरी ईयर, राइट? 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख. उनको आपको पैसे कब देने हैं? जब इंश्योरेंस मैच्योर होगा या आपका प्रीमैच्योर डेथ हो जाता है. ठीक है. तो डेथ होता है तो वो तो आई मीन बिकॉज इट्स अ पूल, so like a lottery ticket, right? कि इतने लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा तो अब किसी का डेथ हो गया, राइट? तो मान सकते हैं कि 1% और इवन 0.1%, like that kind of, like 1000 में से एक का डेथ होता है. तो उनको let's say अगर 1 लाख का प्रीमियम कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे, तो 1000 into 1 लाख हो गया, राइट? 10 करोड़ टाइप हो गया. और जो भी है उनका 1 करोड़ का अगर या 2 करोड़ का मान लिया उन्होंने, तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट करते हैं आई गेस, या एक बेस्ट केस सिनेरियो रिस्क मैनेजमेंट का निकालते हैं. इतने लोग को देना होगा पैसा बिकॉज ऑफ प्रीमैच्योर डेथ, एंड बाकी लोगों को पैसा तब देना होगा जब वो इंश्योरेंस का टाइम विल मैच्योर. ठीक है. मीनवाइल व्हाट दे डू, दिस इंश्योरेंस कंपनी आल्सो डज इन्वेस्टमेंट. So this whole, I mean, financial companies are nothing but a give and take, it's like, and जो बीच में बचा, इधर से कुछ लिया, कहीं कुछ दे दिया, बीच में जो बचा, that is their income, and that from that only they pay the people. Banking works on same. They will give you loan, and then they will also take FD. Let's say very simple to understand.
इधर से फिक्स डिपॉजिट ले लिया, इधर से लोन दे दिया, राइट? एफडी का इंटरेस्ट होगा आपका अभी जैसा चल रहा है 6-7% लेट्स से, बट लोन जो होगा वो 10-12% होगा. So that differential of 3 to 4% is their income. ठीक है. And then they charge processing fee also. ठीक है. जो मतलब लोन डिसबर्स करते हैं, तो that becomes like a one time fee for them. That is also money. और ये जो इंश्योरेंस वगैरह जैसा अभिषेक ने जो एग्जांपल दिया, वो सब इंश्योरेंस पे भी जो कट मिलना था वो अब बैंक को मिलेगा, बिकॉज ऑन एवरी एजुकेशन लोन लेट्स से और व्हाटएवर दे विल हैव इंश्योरेंस डन, राइट? तो वो इंश्योरेंस कंपनी को जो कट देना है वो किसको देगी? वो उसी बैंक को देगी, बिकॉज दे हैव टाइड अप. इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. ठीक है. तो बहुत सारा मतलब इट्स अ फुल इकोसिस्टम. So this is what I mean. We'll try to understand, and we'll maybe find some loopholes. Yeah, क्या है क्या नहीं है. Yes, is that clear? अभी मतलब Yes. basic at least clear हो गया? Thank you so much, sir. Yes, Muskan, you have a question? Basic हाँ clear. जी. Thank Yes, you so Muskan. much, sir. तो सर जैसे आपने बोला कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इन्वेस्टमेंट करती है हम लोगों से पैसा लेकर, तो वो इन्वेस्टमेंट किस चीज में करती है? लाइक स्टॉक मार्केट या फिर जो Mhm. जो सिक्योरिटीज एंड ऑल होती है उसमें करती है, या फिर They I think they invest in lot of things, but they don't invest in anything. They invest in like like blue chip and all, like very secure kind of investment. And फिर वो लोन भी देती है ना. तो if you have insurance, जैसे LIC का मैं बात करता हूँ, LIC का आपने जैसे 1 लाख का प्रीमियम दिया, 20 साल दिया या 10 साल दिया, ठीक है, तो 20 साल तक आप दे रहे हैं प्रीमियम. लेट्स से आफ्टर 5 साल, आफ्टर 10 साल यू नीड मनी. सो आपका 10 लाख जमा है उनके पास, 10 लाख का वो आपको ऑलमोस्ट 80 to 90% दे देंगे. अभी तो आई थिंक 90% तक दे रहे हैं, यूजुअली 80% देते थे आई गेस. इट वेरीज 80 to 90%. इट्स काइंड ऑफ लोन अगेंस्ट द एफडी. फिर उस पे भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे. तो सारा पैसा वो घुमाते रहते हैं प्रीटी मच. I mean, insurance company works like a bank. Yes, Mr. Hari, please. Yes, exactly. और वो जैसे LIC जैसे कंपनी है, वो लोग इन्वेस्ट कर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द सेंस जो जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाना हो गया, रोड्स हो गए, तो ऐसी कंपनियों को भी वो वहां पे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं. Insurance companies like LIC and all. So IL and FS भी उसमें से एक ही है, जो infrastructure leasing and financial services जो कंपनी है, उसमें भी LIC का बहुत बड़ा स्टेक था, जिसमें उन्होंने काफी अमाउंट में पैसा दिया था IL and FS को. So usually they invest in such projects only, main mega projects, like companies like LIC and all. Private insurance companies, so maybe they might be investing in mutual fund as well. Mutual funds में भी वो लोग invest करते हो गए. Apart from that, some other real estate or something. I don't know about that. Yeah. Yeah. So I mean, essence is basically they try to diversify their risk also. Yes. Yes. In short, they just move the money. जो है उसको घुमाते ही रहते हैं. That's it. It's a legal. Yeah. Legal thing. वीडियो देखा होगा, And किटकैट रहता है, उसको थोड़ा या डेयरी मिल्क रहता है, कुछ तो कोई तो एक चॉकलेट था, तो थोड़ा काटा और फिर वापस जोड़ दिया, और वो चॉकलेट लुक्स very similar to what it was original. Yeah, original chocolate निकल बन गया. Yes. So that is a good example to understand how these banking sectors make money. वो टुकड़ा ही उनके एम्प्लॉइज में बट गया एक तरह से. Correct. सैलरी और बोनस जो समझ गया. ये बेसिकली सर इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कंसेप्ट आता है. सो या जो मीन्स एक्चुअली आज के तारीख में आप जो 1 लाख रुपीस आपके पास है, और आफ्टर 5 years और आफ्टर 10 years if you have like 1 lakh or 2 lakh rupees, so जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी मीन्स एट दैट टाइम 2 लाख में आपको शायद कुछ खास मिलेगा नहीं, बट आज के तारीख में 1 लाख में यू कैन गेट समथिंग. सो दैट इज कॉल्ड एज टाइम वैल्यू ऑफ मनी. उसका भी एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल रहता है, जो बैंक्स वगैरह जिसपे वर्कआउट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं,
एंड इवन इंश्योरेंस कंपनीज में भी वो यूज होता है वो कंसेप्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का. तो वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो हरी जी बोले, मैं थोड़ा समझा देता हूँ. इट्स बेसिकली रिलेटेड टू इन्फ्लेशन. तो अगर किसी कंट्री का इन्फ्लेशन इज लाइक 6-7%, 10%, whatever, right? So if FD interest usually will be very close to inflation. That's the tricky part, and lot of people don't understand this. तो आपका जो पैसा बढ़ रहा है या थोड़ा कम ही होगा rather बोले उससे, डिपेंडिंग ऑन कहाँ आप इन्वेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं. तो अगर एफडी की बात करें तो लेट्स से 6-7% इंटरेस्ट है. इंडिया का इन्फ्लेशन भी आई गेस थोड़ा ज्यादा ही होगा उससे. डिपेंड्स कि कैसे आप कैलकुलेट करते हैं इन्फ्लेशन. आई थिंक वो भी एक अपने में टॉपिक है. ये इन्फ्लेशन जो कैलकुलेट होता है एवरेज परसेंटेज, इज इट रियली करेक्ट? वी कैन डिस्कस दैट आल्सो लेटर. तो अल्टीमेटली क्या है कि and if you see developed countries, usually the rate of interest is very low, so they actually encourage you to invest in non fixed deposit assets, like term deposit bolte hain bahar mein, fixed deposit India mein bolte hain zyada. So they try to discourage this kind of hoarding of money कि आप जस्ट पैसे ऐसे रख लो बैंक में या जो भी है, आप ना एक इंटरेस्ट एंजॉय करो उसका. Developed countries usually want you to invest in stocks and other things like that, so that the economy can run a lot. India में थोड़ा सा FD का बहुत ज़्यादा रहा है ऐसा कि लोग बहुत सारे FD कर लेते हैं और पैसे कहीं ना कहीं होर्डिंग कर लेते हैं उसका. तो अभी आई थिंक रिड्यूस हो रहा है थोड़ा इंटरेस्ट, तो अभी लोग might be discouraged. So getting back to the main question or main topic, this rate of investment, rate of return, ROI, rate of return, should be actual rate of return is your rate of return minus the inflation. But what the insurance companies or many investment companies will tell you is the rate of interest only. They will not do that adjustment of inflation. This is up to you to decide, up to you to understand. और आपको समझना है. आप समझ नहीं पाए तो आपकी गलती है. आई डोंट केयर. आई मीन एज अ इंश्योरेंस सेलर और इन्वेस्टमेंट सेलर, तो ये चीज है. तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये एजेंट्स की बात करता हूँ मैं. Now agents are going to tell you about the policies which are in their favor, not in yours. So it's a very simple to understand. If I am selling something, I will probably try to sell something, as a human nature, which benefits me more than benefit you. नहीं होना चाहिए ऐसा, but ऐसा है. ठीक है. इस वजह से क्या होता है, आपको टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत लोग बताएंगे ही नहीं, because the commission is quite low there. मतलब it's not that famous compared to those insurance in which you get less return, but you get some return after certain fixed duration. ठीक है. तो ये जो इंफॉर्मेशन withheld करने वाला चीज है ना, this is a very dangerous thing. In fact, अगर if I talk about me personally, I didn't know about this till a long time, and once I figured out, it's like sort of blew my mind कि अरे ऐसा मतलब इतना ज़्यादा information. So इसको cheating नहीं बोलेंगे exactly, but इसको just बोलेंगे ना information को उन्होंने withhold कर लिया. Let's hear from some people. Mr. Ravi has joined. Ravi ji, what's your take on insurance industry, please? So insurance industry, if we define this one in layman terms, insurance is nothing but a pool of money to bestow the services by collecting the premium to the users. So this is simple. लेकिन अभी इंश्योरेंस का डेफिनेशन, द वे इंश्योरेंस पॉलिसीज यूज्ड टू बी डिफाइंड, इसमें इंडियन मार्केट में स्पेशली देयर आर टू सेगमेंट्स. एक कोई भी पॉलिसी का पार्ट होता है, एक होता है द इंश्योरेंस कंपनी हु इज सेलिंग द इंश्योरेंस, सेकंड इज द एजेंट्स. Agents right now in India play a major role in terms of selling the insurance. Though the governing body is IRDA for the approvals of any kind of policy, लेकिन agent is the one who have
every policy has a shares of agents. और उसका भी जैसे financials model में भी हर एक जगह पे that is there कि आपका एक principal amount रहता है और आपका एक interest amount रहता है, which basically people do not analyze at root level. They take it as a whole क्योंकि हम as a customers we have that mindset कि आप प्रोडक्ट देख रहे तो प्रोडक्ट हैव कॉस्ट एंड प्लस मार्केटिंग सप्लाई चेन एवरीथिंग ऑल टुगेदर इट नोन एज एमआरपी, लेकिन प्रोडक्ट का कॉस्ट कुछ रहता है एंड प्लस एमआरपी कुछ और रहता है. सो इन द सेम वे इन financials प्रोडक्ट आल्सो हैव अ कॉस्ट एंड देन एमआरपी which we generally pay, but the value as a company have lesser. Let's say for insurance I'm paying 10,000 rupees premium per year or per month for a health insurance. So out of that 10,000, there would be principal amount which will be going directly to the policy holder, this one company. But out of that, every year or every the way your premium is being collected, let's say quarterly or yearly or 6 months for life insurance, this one I'm telling, the premium amount used to go to the agent who has done that insurance policy for our customers. And it happens in all the insurance, term insurance, non-term insurance, life insurance, health insurance, all the insurance, the companies who are dealing into it. And this is accelerated in the market in 3 ways. Especially one is the retail users, which we are. The second part is the corporates. So in terms of corporate insurance, there is one more party which comes in, we call it as a third party, TPL. So who incorporates the insurance company and the corporates and mediate the things in between. So there also policy got 3 divisions, a TPL cost, agent cost, and the company cost. So likewise. So this is the costing of insurance. Now the second part of the question was like how this is in terms of market, right? Yeah, I mean, what kind of drawback, scam, क्या बोल सकते हैं? See, financials, every product, not only insurance, but as far as financial products are concerned, everything, you talk about your FD, RD, you talk about any of the loan segments, you talk about credit cards, debit cards, any financial product which is there, always have the persons who sell it always it will not be called as a misinformation, but he always suppress few informations. Few informations he will deliberately not tell to the customers just to like convince the customers maybe one point, and second point, maybe customers already the informations he gets is not fully loaded, which is required terms or which is required if and buts of the insurance policy need to be known to the customers is not known to. Second part, in financials product, all the product or services, of course, when money involves, do have a time value attached to it, which most of the layman persons like us who are not aware of the financials things do not know throughout our this one purchasing cycles itself. To be telling better way, let's say a life insurance which I buy today, which has a cover of 30 years, I have to deposit the policy premium, let's say 10,000 or 50,000, whatever the policy as per the total amounts, and then they give the returns at the end of 32 years after maturity, which if you calculate on the basis of time money factor will be equivalent to that the money will be very much equivalent at the market rate which have today after 30 years. So it will not be like a hype to company who is offering, but the customers who is looking at, he feels as if, okay, a chunk of money I will be saving after 30 or I will be getting after 30 years. So it is more of time factor involved with the money, one. Second, the individual factor which we, like you mentioned, Vikas, is the inflation which is there. Okay. All these savings accounts have an interest. It's because of the inflation. The moment inflation will goes down, interest rate will be goes down. It not be 6%, 7%, it may come to 1% or 0.5% even. See, US market right now, they operate only at 1%. That also sometimes it goes in point percentage
for the interest on the money you deposit on the bank. So this is the point. Yes. Yeah. So इसमें एक चीज और है कि I think what Ravi said. So it's asymptotically, it's like pretty much converging to maybe the inflation only. So Ravi ji ने कहा कि अगर आप 30 साल बाद रियली कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत हेवायर टाइप पैसा मिल रहा है, बट जो अभी आपको दिखाया जाएगा, लेट्स से एग्जांपल लेते हैं 10,000 अ ईयर, ठीक है, 10 साल का हो गया आपका 1 लाख, ठीक है, 30 साल का आपने 3 लाख जमा किया, तो आपको जो इंश्योरेंस एजेंट या जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वो ऐसे दिखाएगा कि आप देखिए हर साल 10,000 जमा कीजिए, आपका 30 साल में 3 लाख जमा होगा और आपको लेट्स से 30 लाख मिल जाएगा, ऐसा या जो भी मतलब 25 लाख मिल जाएगा 20, तो हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे अरे 3 लाख जमा करना है और 30 लाख मिलेगा उस वक्त, बट अब 30 साल के बाद what will be the real value of that 30 lakh or 20 lakh? I mean, when we are saying now, we see ki, we are paying this 30 lakh, 3 lakh and getting 30 lakh, so it's basically 10 times, right? But now if you think in the another way, let's say example of an ice cream. Let's say I buy an ice cream today for 10 rupees or 100 rupees, simple. 100 rupees का एक आइसक्रीम आज खाते हैं, ठीक है, तो हमें किसी ने बोला कि ये 100 रुपया तुम क्या करो, इसको जमा कर दो, तुमको 10 साल के बाद ये 100 का 1000 रुपये मिलेगा, ठीक है, अब 10 साल के बाद मुझे 100 का 1000 मिला, ठीक है, बट अब आइसक्रीम is also sold for 1,000 rupees. तो now the question is कि उसी वक्त आइसक्रीम खा लेना चाहिए था या ये 10 साल वेट करके खाना चाहिए था? अतुल सर, व्हाट डू यू थिंक? थोड़ा सा मिस कर गया विशाल। मैं फिर से एग्जाम्पल बोलता हूँ कि आज 100 रुपए का आइसक्रीम मैं खाता हूँ और या 100 रुपए का आइसक्रीम ना खा के मैं 100 रुपए एक इन्वेस्ट कर लेता हूँ, लेट्स से नाउ 10 साल के बाद वो 1,000 रुपए बनता है, 1,000 रुपए बनता है, 10 गुना हो जाता है, बट अब वो आइसक्रीम भी 1,000 रुपए का मिलता है जो मैं 100 रुपए का खाता हूँ उस वक्त। तो क्वेश्चन ये है कि आइसक्रीम उसी वक्त 100 रुपए का खा लेना चाहिए था या वो 100 रुपया बचा के जब 1,000 रुपया हुआ वो 1,000 रुपया निकाल के फिर वो 1,000 रुपए का आइसक्रीम खाना चाहिए था? आई मीन व्हाट इज मोर वाइजर? तुरंत आइसक्रीम तुरंत खा लेना चाहिए क्योंकि जिंदगी मिले ना दोबारा, पता नहीं कि वो आप 10 साल जिंदा भी रहे नहीं रहे, क्या हो जाए, आपको डायबिटीज अब तक हो जाए, आप इसमें खाने लायक नहीं हो। तो जो भी अच्छी चीजें लगती हैं तुरंत कर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। मान लो आपको पसंद है कि मुझे माजराटी कार इतने करोड़ का है, मुझे खरीदना है और आप अफोर्ड कर सकते हो आज, तो खरीद लो। फिर जब कल को लगेगा कि फाइनेंशियल स्थिति खराब हो गई तो उसको बेच दीजिएगा। तो मेरे ख्याल से तो मैं मानता हूँ कि राइट हियर राइट नाउ कर लेना चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीजें डिसीजन प्लानिंग वाली होती है, आइसक्रीम के डिसीजन प्लानिंग नहीं चाहिए उसमें, लेकिन बहुत सारे डिसीजन है, जैसे हम लोग इंश्योरेंस की बात कर रहे थे, तो इंश्योरेंस थोड़ी प्लानिंग वाली डिसीजन है, आगे का प्लानिंग। तो हम अपने इनकम का कुछ % खर्च कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस, ऑल दोस इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, तो वो जो प्लान जो है उसमें प्लानिंग चाहिए, क्योंकि उसमें हम तो लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म सोचते हैं और रिस्क एपेटाइट एंड ऑल दोस थिंग्स। बट ये जो आइसक्रीम जैसी डिसीजंस है वो मेरे ख्याल से राइट हियर राइट नाउ तुरंत खा लेना चाहिए। Yes, Ravi, please. My second point was with respect to insurance. Insurance कभी भी investment point of view से नहीं करना चाहिए। Ravi, your voice is suppressed somehow. Hello. हाँ, अभी ठीक। Audible? Yes, yes. Is it audible now? Yes, yes, yes. Yeah. So as this is my opinion, I'm putting forth. So for insurance, जो भी there are a lot of people who do investment in insurance, maybe a life insurance which they buy. So इस तरह का investment है, so never do the as a thinking of investment as a life insurance. Insurance, life insurance is required. There are 3 insurance which generally use insurance, health insurance and life insurance. रवि जी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। अच्छा, मैं लीव करके ना। हाँ, ठीक है, ठीक है। Okay, let's hear from other people. What do they think as a just as a common? Yes, Nandan, what do you think?
you will eat ice cream that time or after 10 years? Sir, I have heard the question in the second time, but I don't know Hindi. I missed the question. So I'll again repeat. Let's say Yeah. ice cream is cost 100 rupees now, and Okay. somebody tells you, please invest this 100 rupees. After 10 years, you will get 1000 rupees. Don't eat Okay. the ice cream today. Eat, Okay. eat ice cream later. After 10 years, you will have 1000 rupees to buy ice cream. But after 10 years, the ice cream is also costing you 1000 rupees. So overall, Yes. you didn't. You just curbed your desire not to eat ice cream if you are investing it, or you just eat the ice cream right then and there, and curb your desire that time, Okay. and don't worry about investment. Which one would you choose? Sir, if you relate this to an real estate, as if we invest right now, it would be 10 times 10 years after 10 years. But after 10 years, if we are investing the same thing, the value of the money would increase, I think so. That right now, if we want to buy a land, the value of the money what we are having is different. I think the value of the proposition would be different after 10 years. Example that I gave, it's 10 times Yeah. 10 times. The product is also costing 10 times that you Okay. sort of didn't eat, and the Okay. investment return is also 10 times. So instead of eating ice cream now, would you like Okay. to eat ice cream 10 years later when the cost of ice cream and the cost of, your investment is same, or you rather prefer to eat the ice cream now? If you are careful in the calculation. Okay. I'm sorry, sir. I could not tell the answer. Okay, never I mind. would But listen yeah, to some others. yeah. Okay, Abhishek Janta, Okay. what do you think? No. Are you there, Abhishek? Okay, maybe Hari ji, you have a comment? जी मैं वही एग्री करूंगा कि 100 रुपए में मिल रही है चीज तो खा लिया जाए आइसक्रीम. यस एंड या कि उसका जो एक बार आपको अगर आइसक्रीम सपोज 1000 में अगर मिल रहा है इन फ्यूचर, तो ऐसा तो नहीं है कि 1000 का आइसक्रीम में ज्यादा मजा आएगा या 100 का आइसक्रीम में कम मजा आएगा. सेम ही आइसक्रीम है. मैं सेम ही ऑलमोस्ट सेम एग्जांपल ले रहा हूँ. हाँ तो सेम ही आइसक्रीम रहेगी तो बेटर 100 रुपए में मिल रहा है तो जितना जल्दी खा लो उतना बेटर अच्छा है, उतना ही अच्छा है. That's what I feel. Correct. So this is how investment can be actually understood. Lot of investment are like this. What you get after 10 years is probably of the same value as what it is now. But हमें लगता है कि ये ना 100 रुपए का 1000 रुपए हो गया, बहुत अच्छा है, अभी आइसक्रीम ना खाया जाए. जैसे एक कमेंट करना चाहूंगा विशाल, जो रवि जी के पॉइंट से कि इंश्योरेंस के मल्टीपल रोल्स हैं. एक है रिस्क मैनेजमेंट, कि अचानक कुछ दुर्घटना हो गई लाइफ पे, कार पे, प्रॉपर्टी पे, तो वो है. दूसरा जो उन्होंने बोला कि बहुत इंश्योरेंस का एक दूसरा एलिमेंट है कि इन्वेस्टमेंट भी है, आपके लिए सेविंग भी है. तो बहुत सालों पहले मैंने एक इंश्योरेंस लिया था, लाइफ इंश्योरेंस अपना, काफी बड़े अमाउंट का लिया था, 15 साल ज्यादा हो गए. उसके बाद मुझे इंश्योरेंस वाले जब भी कभी कभी पकड़ते रहते, पीछा करते, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे जो रिस्क अवॉइडेंस के लिए जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है, अब आई डोंट नीड एनी मोर. तो वो पार्ट है कि इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इंश्योरेंस इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन. इंश्योरेंस कैन बी वन ऑफ इन पोर्टफोलियो ऑफ थिंग्स, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू इज इन योर नॉलेज, योर स्किल्स, योर लर्निंग, उन सब चीजों में, एक्सपीरियंसेस में, लाइफ के जो भी आपके वैल्यूबल अच्छा लगता है एक्सपीरियंसेस, उस पर इन्वेस्ट कीजिए. वो कभी नहीं जाने वाला. नॉलेज कभी नहीं, नॉलेज का जो होता है वो एक्सपोनेंशियल इंक्रीज ही होगा, घटेगा नहीं. बट ये जो लाइफ इंश्योरेंस वाले जो इंश्योरेंस बेचते हैं, तो वो मिनिमम ले लीजिए जो आपको लगता है कि चाहिए. किसी के लिए हो सकता है कुछ करोड़ रुपए चाहिए, किसी के लिए सैकड़ों करोड़ चाहिए, बहुत पैसे वालों को. लेकिन आपका जो सिचुएशन इन लाइफ है, लाइफस्टाइल है, उसके लिए जो आपको लगता है आप लॉन्ग टर्म में क्या आप कब रिटायर करोगे या कब आपके हो जाएगा कि मान लीजिए 55 या 65 के बाद
आपको एक इनकम चाहिए, तो one of those investment can be insurance, but then you also have to diversify investment का एक और basic rule जो सुना है और सीखा है, it has to be a diversified portfolio. So you cannot put all the bets in one portfolio. हाँ, LIC और जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो लोग भी क्या करते हैं कि हमारे प्रीमियम को लेकर दे ऑल्सो क्या करते हैं, वो लोग भी इन्वेस्टमेंट में करती हैं, उन्होंने कुछ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज में डाल दिया, कुछ बॉन्ड्स में डाल दिया, कुछ स्टॉक्स में डाल दिया, उनका पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड होता है। तो हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो हम LIC के थ्रू कुछ लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, तो LIC दूसरों में इन्वेस्ट करता है, बड़े बड़े कंपनीज में इन्वेस्ट करता है और बड़े बड़े बॉन्ड्स में, एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। तो आप चाहो तो अगर आपका एपेटाइट है इन्वेस्टमेंट का, अंडरस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट है, तो आप LIC को दे दो कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट कर रहा है, दैट्स फाइन। बट आपको थोड़ी समझ है, जैसे ग्रुप में आई थिंक हर्ड कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करती है, तो वैसे लोगों से बात कीजिए, उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट कराइए, क्योंकि उसमें रिटर्न्स थोड़ा ज्यादा आने के चांसेस, उसमें भी रिस्क है, बट आप थोड़ा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बोल रहा हूँ कि कुछ आप सेफ्टी के लिए करो और कुछ चीज आप रिटर्न्स के लिए करो, कि मुझे नहीं कोई ये पोर्टफोलियो में 20% डालना चाहता हूँ हाई रिटर्न, बाकी 20% चाहता हूँ स्टेडी कि रिस्क मतलब कि लाइफ एक्सीडेंट्स के लिए, 20% फॉर लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के बाद के लिए, 20% फॉर दिस। तो अपनी इनकम को और सेविंग को थोड़ा डाइवर्सिफाई करोगे तो होगा। और उस डाइवर्सिफाइड में ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो भी आपके वो खुद में भी डाइवर्सिफाई करते हैं, बट आप उन इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा भी आप पोर्टफोलियो रखो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी का ही भट्टा बैठ गया, कल को पता चला कि LIC या जो बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनी, तो आप थोड़ा बहुत अलग अलग पोर्टफोलियो में डालो, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म जो एसेट होता है। इसमें जो कोई स्टॉक्स में या कोई इन्वेस्ट करता है, आई थिंक that person might be able to give better guidance. Yeah. So yeah, that's true. एक चीज और थोड़ा सा समझते हैं कि एक चीज है कि अगर आपने 20 साल के लिए इंश्योरेंस में कमिट कर दिया, तो आपका हर महीना या हर साल जैसे 10,000 जा रहा है। अब मान लिया जाए कि अभी कोविड का टाइम है जैसे, या है बिजनेसेस हैं, ये है, सैलरी है, सैलरी घट गई आपकी, somehow you are not able to afford that because of this. तो question on the floor is कि ये 20 साल का commitment isn't it very dangerous? Like doing a commitment for 20 years on, let's say, investment policy that I'll pay certain sum every year can become a burden on a lot of people. Let's say if they have a financial turmoil in their life, right? So Arik, you have a comment in this कि I mean इस तरह से I mean क्या मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग अभी क्या है, अभी I think एक दो लोग जो भी ग्रेजुएट भी हुए हैं हमारे ग्रुप में भी हैं, what will happen is once they start earning, all the banking people will approach you and start selling you things कि पहले तो मतलब पैसा था नहीं तो पूछ रहे नहीं थे अब पैसा आ गया, तो अब वो तरीका निकालेंगे कि आपका अकाउंट कैसे रिडायरेक्ट करे वापस वो अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में, ताकि आपको इन्वेस्टमेंट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इंश्योरेंस हो जाए, ब्ला 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 करके पता चला कि आपका सैलरी का आधा या व्हाटएवर वापस वो लेते जा रहे हैं। और they I mean most of these people will prefer regular salaried people, because क्या होता है कि इनका रेगुलर सैलरी होता है, वो they are able to pay regularly, right? Whereas businessman का क्या होता है, छोटा बिजनेस खासकर बोल रहा हूँ, they have irregular kind of salary or irregular income, so they will not get I mean the offer so fast. तो इसमें Mr. Hari, आपका कुछ कमेंट है? ये प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, लाइक व्हाट्स योर टेक? यस, मुझे लगता है कि एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता वही चीज फॉलो करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि इंश्योरेंस में जो है एट द टाइम ऑफ जब आप ले रहे हो इंश्योरेंस, तभी हमें सोच लेना चाहिए कि whether this is like is it possible for me to pay for 20 years or 30 years. तो ये चीज भी हमको सोच के उस वक्त डिसाइड करना चाहिए कि क्या क्या एक्शन लिया जाए।
बट मेन थिंग तो फर्स्ट थिंग इज एक बार कमिटमेंट कर लो तो फिर बस यू हैव टू फॉलो इट, दैट्स इट। क्योंकि इफ लैप्स करेंगे तो फिर अगेन देयर इज सम इश्यूज विद दैट, so better to Correct. avoid So that. Yeah. this is the interesting part when the students just graduate, start earning, उनका expenses बहुत ज़्यादा नहीं होता है, Yes. they are saving a lot and Yes. somehow commit to all this Correct. financial insurance की बात कर रहे हैं अभी, और भी चीज़ों की बात करते हैं। Yes. let's say insurance में उसने बोल दिया हाँ मैं I'll give, तथास्तु कर दिया। कोई अंकल थे, कोई चाचा वाचा थे अगल बगल के, जिनको कभी बोला था कि एक बार मुझे पढ़ लेने दीजिए अंकल, एक बार मैं पढ़ लूंगा या लूंगी, उसके बाद तो आपसे इंश्योरेंस करवा लेना है मुझे, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं ये जो कमिटमेंट की बात हुई, ये पहली कमिटमेंट हो गया अर्निंग स्टार्ट होने से भी पहले। जब अर्निंग स्टार्ट होगा तो आई विल डू Yes. इंश्योरेंस विद यू। अब Yes, क्या yes. है कि अब तो वो चाचा जी जो है, अंकल जी है, वो तो आ जाएंगे, देखो बेटा तुम्हारा तो जॉब लग गया, ये है वो है। और घर वाले भी क्या करेंगे, और बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, अरे मेरा बच्चे का तो 10 लाख का जॉब लगा है, 20 लाख का जॉब लगा है, सीटीसी को इन हैंड सैलरी बता देंगे सबको। तो कहीं ना कहीं वो एक एक्सपेक्टेशन भी आ जाता है। सो एक्चुअली दैट पर्सन हु इज नॉट वेरी फाइनेंशियली लिटरेट at that graduation stage, or maybe some are literate but most of them are not, or at least half of them are not। कहीं ना कहीं वो they get into this trap, ये अब तो फंस गए, अब क्या करें, ठीक है। अब पेरेंट्स ने भी कभी बोल दिया कि हाँ बेटा कर लो, तो मतलब अच्छा ही है, सेविंग्स है, ये है वो, क्योंकि उन्होंने भी किया था कभी। अब इधर बच्चा भी बोला हाँ ठीक है, मतलब एक साथ शादी कर लिया है, 20 साल का शादी हो गया तो इमरजेंसी से, तो ये फंस गए वो। तो इसको बचाने के लिए नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमारा कमिंग टू एजुकेशन सेक्टर नाउ अब हमारे एजुकेशन वाले में जो 4 साल का इंजीनियरिंग होता है या 3 साल का ग्रेजुएशन वगैरह होता है, उसमें ये चीजें नहीं सिखाई जाती कहीं ना कहीं, ये वेरी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग एटसेट्रा। सो डू यू थिंक, आई मीन दिस शुड बी एक्चुअली I don't know, part of a mandatory syllabus or something, that कि कुछ एक basics बताओ उन्हें before they graduate, otherwise there is a high chance that they might fall into this whirlpool and eventually come out as Abhimanyu instead of Arjun, ठीक है ना, चक्रव्यूह में खत्म ही हो जाएंगे पूरा। तो यादव सर आपका क्या कहना है इसमें, बताइए। मैं ठीक से फिर से विशाल समझ नहीं आ पाया, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ानी चाहिए कि नहीं ग्रेजुएशन लेवल पे के पहले? ग्रेजुएशन नहीं, मेरे ख्याल से स्कूल लेवल पढ़ानी चाहिए। बच्चों को स्कूल में जैसे हम लोग ABCD मतलब मैथ्स इंग्लिश साइंस पढ़ाते हैं, साथ में एक फाइनेंस का भी पेपर होना चाहिए। बोलेंगे बचपन में उनको मैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बट उनको पैसे का हिसाब किताब रखना तो बचपन से सिखाना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, और वो स्कूल के अलावा घर में जो माँ पापा है उनकी भी ड्यूटी बनती है कि माँ अपने बच्चे को, हम लोग जानते भी बहुत सारा कि बहुत जगह देती है कि तुम ये पैसा तुमको जाओ बाजार से सब्जी या कुछ खरीद के ले आओ। तो पैसा दिया माँ ने या पापा ने, उसके बाद बच्चा पैसा को उसने खर्च किया, उसके बाद वापस आके लौटाता है। कुछ बच्चे उसमें से कुछ पैसे चेंज रख भी लेते हैं, तब से उनकी बेईमानी निकल जाती है, तो उसमें उसको डांट लगेगा, सजा मिलेगा। लेकिन बचपन से ही बच्चों को थोड़ा पैसा पेरेंट्स दें और उसको यूज करना सिखाएं। और स्टॉक मार्केट में बचपन में हो सकता है कि बच्चे नहीं याद हो रेडी हो, 3-4 साल 5 साल, जब से बच्चे थोड़े से 5-6 साल के हो जाएंगे तो उनको थोड़ा बहुत पैसा देना चाहिए, सो दैट एंड उनको बोला जाए, उनको देना चाहिए कि तुमको चॉकलेट पसंद है या तुमको ये खिलौना चाहिए, तो यू नीड टू अर्न दैट। तुमको जो पैसा हमने तो मंथली बजट डाला है 100 रुपया तुमको देंगे, तो 100 रुपए के अंदर तुमको जो भी पूरा करना है वो सारे शौक तुम उसी 100 रुपए में पूरा करो। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं तो 100 हो सकता है, 200 हो जाए, 500 हो जाए। बट ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी अगर पेरेंट्स बचपन से सिखाएं और इवन स्कूल भी थोड़ा उसमें रोल प्ले करें, स्कूल में भी, प्राइमरी स्कूल में भी अगर बच्चों को थोड़ा सा पैसे का भी हिसाब किताब समझाया जाए सिंपल सरल भाषा में,
तो आई थिंक दैट विल बी गुड, और वो लाइफ लॉन्ग हैबिट्स बन जाएगी। एंड जिस बच्चे को बचपन में जो अच्छी आदतें लग गई तो चांसेस है कि वो और उसमें उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। कल को हो सकता है कि वही कोई बहुत बड़ा वॉरेन बफे बन जाए, बचपन से इन्वेस्ट करे, सोचे कितना पैसा कमाएगा, बचपन से ही स्कूल में जाते जाते स्टॉक मार्केट में लगाने लगा, स्कूल कॉलेज जाते जाते फिर हो सकता है कि वो फाइनेंस का गुरु बन जाए या स्टॉक मार्केट का या बॉन्ड्स का सीख जाए। तो मेरे ख्याल से जब जैसे ही बच्चा कुछ पैसा संभालने के लायक हो जाए उतना पैसा भी देना चाहिए, और केवल थ्योरेटिकल एजुकेशन नहीं, प्रैक्टिकल भी, कि ये लो बाबू, ये तुम्हारा इस वीक का खर्च है, इसमें तुमको जो भी चॉकलेट चाहिए या जो भी गेम खेलना है इसी में करना है। और जैसे जैसे रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर देगा तो उसको फिर रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए और ज्यादा। अगर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर नहीं दिया तो फिर उसको फिर और ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। तो बच्चे को उस जमाने से एक तो ट्रेनिंग भी हो गई और थोड़ा नॉलेज भी हो गया फाइनेंशियल का। Yeah, Nandan, so what do you think this financial literacy training should be at what age? School level, Yes, college sir. level, or never? Yes. I would I'm happy that Atul sir told so much of nice things, but I rather think that the mindsets of the parents has to also be changed. Yeah, because uh, as my parent, as my father, he is into 50 years. His father, he would be into 90 years right now. His father is an uh, in his age. His father is an freedom fighter. He, as my father, he does not have any pressure, so the reason all my generation fathers are into different streams, but our generation, we are having some pressure from the parents that you have to do this, you have to do this. They are not keeping the concentration on the money. They just treat as a money is a bad thing. But the parents should also explain about what was the values, the basic values of the money, what we can do with the money. It's not a bad thing. The basic education has to being implemented by for the students by the parents only. The parents mindsets has to be changed, I think so. Rather my next generation, I would teach my children more about the money, I think so, but my generation would differ a lot. Mhm. Sure. Muskan, are you there? What's your take? When should this financial literacy be given to students or So adults or what age? yeah, तो फाइनेंशियल लिटरेसी आई थिंक अचल सर ने बहुत अच्छे से बोला, स्कूल से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर लाइक बच्चे को अपने पर्सनल फाइनेंस आना चाहिए कि उसे पर्सनल फाइनेंस कैसे कितना रखना है, उसको मंथली अमाउंट मिलना चाहिए अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। सो आई थिंक मैं अतुल सर के साथ कंप्लीटली एग्री करती हूँ। आई थिंक अगर तुम बच्चे को स्टार्टिंग से इवन स्कूल से ही सिखाते हो तो वो आगे जाके स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट कर पाता है, या फिर लाइक अपने मनी को अच्छे से यूज कर पाता है। एक फेमस कोट है इसके ऊपर, डोंट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। तो ये चीज तभी आ पाती है जब हम बच्चे को स्टार्टिंग से सिखाएं। तो या स्कूल लर्निंग शुड बी देयर। So according to you, अभी currently कब सिखाया जाता है ये चीज, या कब सीखते हैं? Like have you learned अभी तक थोड़ा मोड़ा? So actually I learned from past 2 years. My dad is in stock market, तो इसलिए मुझे स्कूल में कभी नहीं पता था। 12th तक आई डोंट नो कि फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं। आई डोंट नो एनीथिंग। बट हाँ, after just completing my 12th, so I just start investing and just seeing the things. तो उसके बाद मुझे थोड़ी नॉलेज आने लगी। बट अब भी अगर मैं अपने फ्रेंड्स को देखूं तो अब भी उनमें फाइनेंशियल लिटरेसी इतनी नहीं है। जो कुछ ही लोग होते हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएफए हो गया, उन लोगों को थोड़ी नॉलेज होती है कि हाउ टू कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल बीकॉम, बीबीए या फिर ये जब होती है डिग्रीज, इनमें बहुत सारे बच्चे होते हैं। आई थिंक 80% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो अबाउट दिस। Yeah, which is an unfortunate case. Okay, Saurav has joined. Saurav, so the question right now is कि ये financial literacy कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे खर्च करना चाहिए, कहाँ क्या करना चाहिए, ये किस एज से सीखनी चाहिए लोगों को, या मतलब अभी किस एज से सिखाया जाता है? rather, what is the your take?
You're not muted. हेलो हेलो, Yes, Saurabh. आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है. ओके, सॉरी मैं तो ज्वाइन किया काफी लेट. तो मैं वीडियो मैं स्टॉप अपना कर देता हूँ, थोड़ा इजी होगा. हाँ, यस सर. अब आवाज आ रही है मेरी? यस यस. ओके ओके. तो मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ. मुझे तो आज तक कभी पॉकेट मनी मिला नहीं था. टाइम जब मुझे पैसा मिला वो मिला जब मैं बीटेक कर रहा था. फर्स्ट ईयर में मुझे घर से बाहर जाना होता था, तो मैं ऑटो से या बस से जाता था, और कुछ दिन बाद मेरे पास बाइक आया या स्कूटर आया तो मुझे पेट्रोल भरना होता था. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को थोड़ा सा पैसा पापा देते थे. वो डेली मुझे 50, 100, 150, 200 रुपए देते थे, और जब वो खत्म होता था तो मैं फिर उनसे मांगता था. उससे पहले अंटिल 12th क्लास आई नेवर हैड एनी पैसा विथ मी. मेरे स्कूल में आई एम अ पास आउट ऑफ डीपीएस. तो डीपीएस एक ऐसा स्कूल है जिसमें बहुत अमीर लोग के बच्चे पढ़ते हैं. तो आई सॉ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके पास हमेशा पैसा होता था. कैंटीन में वो डेली बर्गर खाते थे और पेप्सी पीते थे. आई यूज टू नेवर हैव दैट. मुझे मन बहुत करता था, मुझे गुस्सा भी आता था अपने पेरेंट्स पे कि वो मुझे देते नहीं है. डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं फाइनेंशियली, हम लोग का परिवार, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, अपर मिडिल क्लास फैमिली, तो कभी पैसे का दिक्कत नहीं रहा है. लेकिन फिर भी मेरे पापा ने या मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे पैसा नहीं दिया अंटिल मैं कॉलेज में ग्रेजुएशन करना शुरू किया. सो आई हैव मिक्स्ड फीलिंग्स. शायद शायद ये सही था कि मुझे पैसा नहीं मिला, क्योंकि मैं देखता था कि जिनको पैसा मिलता था मेरे दोस्तों को, वो पैसे का बहुत मिसयूज भी कर रहे थे. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन डू विथ मनी. तो मैं वो मिसयूज चाह कर भी नहीं कर पाता था, बिकॉज आई नेवर हैड मनी. Whereas मुझे आज लगता है, नाउ दैट आई एम अ फादर और मेरा बच्चा बड़ा होगा और उसको पैसा चाहिए, तो आई बिलीव कि थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलना चाहिए, सो दैट ही अंडरस्टैंड्स हाउ टू मैनेज मनी. बट हाँ, मनी हैज इट्स ओन डीमेरिट. सो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में अगर हम कर सकते हैं तो दैट विल बी गुड. सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से. श्योर. सो अच्छा चीज सौरभ ने बोला कि आई थिंक ज्यादा छोटे बच्चों को भी पैसा देना इज डेंजरस. बट आई गेस एक चीज ये हो सकता है कि स्मॉल किड्स कैन हैव सम वर्चुअल मनी गेम प्रोबेबली to understand the finances and all, and probably this can be done as some extra classes. I think होता भी है थोड़ा मोड़ा as a game, एक व्यापार, एक गेम. तो आई थिंक आज के बच्चे शायद नहीं खेलते उतना, पहले बहुत खेलते थे जब हम बच्चे थे. तो एक वो सब होता था थोड़ा मोड़ा कि वर्चुअल करेंसी, पेपर करेंसी, झुटमुट का करेंसी रहता था, उससे लोग थोड़ा व्यापार खेलते थे और थोड़ा मोड़ा वो पैसे जोड़ना घटाना सीख जाते थे. यस नंदन प्लीज. Yes, sir. Regarding the business game we are having now, it was a beautiful game. From the childhood only, they are going to think where I have to invest. Like I have to buy the home, or I have to buy the assets, or all those things. Business is the most dangerous and most nice mind game. But most of us don't know. Like business, they play as a game, but it was a nice game regarding what you say, what you told. Yeah, sure. I mean, there shall be some guidance with the game, because I guess game can go both sides, because now they are playing with virtual money. So it doesn't matter कहाँ खर्चा होगी क्या क्या. नहीं, They can lose. गेम्स में कार्ड ताश खेलना वो भी एक गेम है, बट ताश में बहुत सारे लोग वो जो गैम्बलिंग टाइप के हैबिट्स आ जाती हैं. वो कल को चाहें तो आदमी लूडो में भी या उसमें भी आदमी गैम्बलिंग कर सकता है, बेटिंग कर सकता है. तो उन सब चीजों पे आई थिंक थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि गैम्बलिंग टाइप की चीजों को स्टूडेंट्स को या बच्चों को इनकरेज नहीं किया जाए बचपन से. Correct. इसमें मैं विशाल Please. एक चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया में बहुत सारे नेगेटिव यूज है मनी के. फॉर एग्जाम्पल गैम्बलिंग बोला गया, फॉर एग्जाम्पल सिगरेट, दारू, या यू नेवर नो दे वांट टू डू इंडल्ज इनटू प्रोस्टिट्यूशन. तो अगर पैसा आ जाएगा यंग एज में तो इट इज वेरी इजी फॉर अ यंगस्टर टू, मतलब भटक जाना बहुत इजी है.
मतलब हम सबको पता है, हम सबने स्कूलिंग भी किया है, हम क्या क्या स्कूल में करते थे। विदाउट मनी कितना चीजें कर सकते हैं हम। तो अगर पैसा आ जाएगा तब तो नेगेटिव चीजें ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्टिव चीजें। तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं किस सारे पैनलिस्ट से कि व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ मनी, अगर आप उनको पॉकेट मनी दे देंगे तो बच्चा करेगा भी क्या पॉकेट मनी में? उसे उसे चाहिए क्या? उसे आइसक्रीम चाहिए कि उसे टॉफी चाहिए, या उसे उसे चाहिए क्यों पैसा? अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सबसे, एक जो 10th में पढ़ रहा है, I have to pay him rupees a month, क्योंकि उसको चाहिए, वो एज अ फादर उसको चाहिए, खरीद रहा हूँ, तो उसको पैसा चाहिए क्यों? Why do you have to pay him pocket money? Sir, the audible was not Yeah, nice. so I will repeat. I think, yeah, the voice is breaking. I think he's out probably somewhere. तो ये है कि what he is saying is कि why does a student need money, especially a school student? I mean, why shall we give any school student any money? I mean, just to teach the financial literacy, is it necessary to give them the physical money? Yes, Nana. What do you think, Nana? Um, Or Muskan, please. Yes, you want to say something? या जो अभी सौरभ सर ने एक बात बोली कि मनी का बहुत रॉन्ग यूज होता है, आई थिंक वो इंडिया में ही बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स लाइक हमें पैसे देने से पहले लाइक दे थिंक 100 टाइम्स कि वो रॉन्ग यूज ना करे उनका चाइल्ड। तो आई थिंक वो जो पॉइंट है वो सिर्फ इंडिया के लिए ज्यादा ज्यादा है, ये सब इंडिया में बहुत ज्यादा कैश होता के है। लिए ज्यादा है क्योंकि कैश पे नाम नहीं लिखा होता है किसी चीज का। I guess I people use disagree with Paytm. that. Yes, ऐसा Atul, नहीं है yes. कि इंडिया में ज्यादा है, ऐसा नहीं है। वो प्रॉब्लम इंडिया से बाहर और भी ज्यादा है। यहाँ के आज कैलिफोर्निया में जहाँ मैं हूँ, यहाँ पे सबसे बड़ा समस्या है, इवन कोरोना से बड़ा समस्या है इसका पेन किलर यूज करके, मतलब ड्रग्स का, और बहुत बड़ा एडिक्शन है। और होमलेस लोग, बड़े बूढ़े, हर तरह के एज के लोग रोड पे पड़े हुए हैं। तो कभी कभी ज्यादा प्रॉस्पेरिटी या पैसा होने के साथ और ज्यादा खराब आदतें आ जाती हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। न्यूयॉर्क सिटी में आप जाओगे, बहुत सारे इलाके हैं वहाँ पे सेफ नहीं हुआ करता था। जैसे आज बहुत पॉपुलर जगह टाइम स्क्वायर, बट बिफोर दिस गाय ब्लूमबर्ग या किसी ने, उसके पहले किसी और मेयर ने वो टाइट किया था, रात को वहाँ जाना लोग सेफ नहीं समझते थे। तो ये जो क्राइम है या जो बेसिक ह्यूमन नेचर है, जो वाइसेस है, वो पूरी दुनिया में है। यूएस में जो कि पैसा ज्यादा है तो बड़े लेवल पे होता है, और ज्यादा गंदा काम करते हैं। हाँ, यहाँ पे तो और भी बंदूक खरीदना भी बहुत आसान है। तो यूएस में आए दिन स्कूल में शूटिंग हो जाती है और मर जाते हैं। पिछले कुछ सालों से नॉन स्टॉप हर कुछ महीनों पे शूटिंग हो रही है, बहुत बच्चे मर जा रहे हैं। तो उसके लिए कैसे मान सकते हैं कि इंडिया में लोग कम, इंडिया के बच्चे गैर जिम्मेवार और यूएस के बच्चे जिम्मेवार? मुझे लगता है कि इंडिया के बच्चे थोड़े ज्यादा जिम्मेवार हैं, क्योंकि वहाँ फैमिली थोड़ा वो ज्यादा समय देती है बच्चों के साथ। फैमिली और स्कूल थोड़ा ज्यादा डिसिप्लिन में रखती है, जबकि यूएस में तो बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए हैं। I guess it's because of the population ratio also. इंडिया में जो भी होता है, I think people think numbers as in कि इंडिया में 1000 लोग ने कुछ कर दिया गड़बड़, या let's say out of 130 करोड़ 1 करोड़ लोग खराब हो गए for some reason, ठीक है? So that's like roughly 1%, less than 1% of the crowd. But same in US would be more like 30 लाख 50 लाख 40 लाख, because the population ratio is like that. तो अब बोलने को कोई अगर ट्रू मेजर में बोले तो वो तो ये बोल देगा कि यहाँ 30 लाख लोग खराब है, यहाँ 1 करोड़ लोग खराब है। बट परसेंटेज वाइज देखे तो that 1 crore is out of 130 crore, but here 30 lakh is out of that जो भी है 30 crore something, 35 crore population. तो परसेंटेज आई गेस ये एक ज्यादा बड़ा ये है। बट coming to this in a bit more detail, let's say कि आई थिंक ये जैसे पेटीएम है या क्रेडिट कार्ड आई डोंट नो बच्चे को दिया जा सकता है, बट मे बी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अगर दिया जाए तो इट माइट बी अ बिट मोर सिक्योर एट टाइम्स मे बी, और वेरी लेस कैश, आई डोंट नो, लाइक 200-400 रुपए डिपेंडिंग ऑन जो भी जगह पे रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन कहाँ रहते हैं, मेट्रोज में रहते हैं या टायर 2 में रहते हैं, टायर 3 में रहते हैं। सो लिटिल बिट ऑफ मनी माइट बी गिवन। मैं अगर अपनी बचपन का बात करूं तो we used to, I mean, not get as a pocket money so much, but
I used to, like bring vegetables and things for home, and from 6-7 standard only used to do lot of घर का काम जिसमें मनी ट्रांजैक्शन होता था, और पापा हमारे कुछ साल बाहर रहते थे, तो हमें मतलब मैं ही घर का बड़ा बेटा था, तो आई वाज लाइक सेकंड गार्जियन, तो आई हैड टू डू लॉट ऑफ मनी ट्रांजैक्शन। वो थोड़ा सा आई थिंक आई एग्री कि थोड़ा सा हो जाता है कि चिल्लर बचा के ये कर लो वो कर लो, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं बच्चे, बट आई गेस थोड़ा सा वो सीखने को भी मिलता है, तो आई गेस इट्स हैज बोथ साइड। और कहीं ना कहीं आई डोंट नो, आई मीन हर चीज को पूरा बैन करने से ही ठीक होगा, आई एम नॉट श्योर ये कितना हद तक सच है, probably there might be a gray area in here. So let's hear from Ravi has joined back. Ravi, yes, so we are talking, I think you got disconnected that time. ये फाइनेंशियल लिटरेसी का एज क्या होना चाहिए और कैसे देना चाहिए बच्चे लोगों को, या मतलब व्हाट इज द राइट एज और कैसे देना चाहिए, मतलब अभी प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में तो ये मिसिंग है पूरा। सो फाइनेंशियल लिटरेसी, सी आई विल टेल यू विथ माय एक्सपीरियंस। हम लोग जब सैनिक स्कूल में थे तो वी यूज्ड टू गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज अ पॉकेट मनी, एंड दो वी फ्रॉम मतलब बोर्डिंग स्कूल था तो कुछ रिक्वायरमेंट एक्सटर्नली था नहीं, पर फिर भी एक बेसिक जो है, अभी कैंटीन में कुछ जाके खाना है या फिर किसी दिन हम लोग आउट ऑफ सिटी मतलब सिटीज में जा रहे हैं तो कुछ परचेज करना है तो उससे एकोमोडेट हो जाता था। तो इट इज लाइक कि आप एज अ पेरेंट्स वी हैव अ पर्सन हैज टू डिसाइड कि इन विच सिनेरियो आई हैव टू गेट हाउ मच मनी, सो उससे एक एक्सपोजर रहता है। लेकिन दूसरी तरफ जब most of the childrens when they pass their 12th up to 12th they remain with their parents, और higher educations के लिए they leave their homes, जब बाहर आते हैं तो इंजीनियरिंग में खास करके देखा जाता है कि आउट ऑफ 40-50 ऑफ बैच 20% स्टूडेंट 30% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो घर से पैसे मंगा रहे हैं एंड दे आर यूजिंग फॉर सम अदर पर्पस। लेट्स से अभी बुक चाहिए, so book cost is around 600 rupees, they will ask from the parents to 2000-3000 rupees, or दिस इज द रियल केस आई एम शेयरिंग कि इंजीनियरिंग में फ्रेंच स्केल के लिए अ चाइल्ड हैज आस्क्ड 2,05,000 रुपीज फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और उसने 2-2.5 लाख रुपया सिर्फ एक फ्रेंच स्केल जिसका कॉस्ट अराउंड 6-7 रुपीज रहता है, एंड ही मेड द स्टोरी लाइक कि फ्रेंच स्केल फ्रेंच से आता है एंड काइंड ऑफ थिंग्स, एंड देन पेरेंट्स उनके काफी मतलब इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, दे हैव ट्रांसफर्ड। तो ये चाइल्ड का एक ब्रेन मैपिंग भी एक एज अ पेरेंट्स होना चाहिए कि हाउ माय चाइल्ड इज वर्किंग फाइनेंशियली इन दैट वे। वन सेकंड पॉइंट जो मैंने कल बोला था विथ रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन, ये हर चीज में लागू होता है कि आप अपने चिल्ड्रन को ना हमेशा डेफिशिएंसी फील कराइए, अभाव फील कराइए, उससे एक चिल्ड्रन में दबाव आता है जिससे बिहेवियर जो है अच्छा बनता है। और ये मैंने अपने केस में या फिर अपने भांजे के केस में बहुत अच्छे से हम लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसका आउटपुट काफी अच्छा मिलता है। सो दिस इज व्हाट आई विल सजेस्ट कि हमेशा जब तक बच्चे को है एज पर एज, एज पर क्लास, एज पर स्टैंडर्ड एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल एक्सपोजर देना चाहिए, लेकिन अबाउट दैट अगर जा रहा है तो अ पेरेंट्स नीड टू लुक इनटू। सो आई थिंक इनिशियल एज में तो बेसिक लिटरेसी हो गया, just before they graduate or maybe they start earning money, तो एक और चीज है जैसे अभी हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारा बात करते हैं, आई थिंक आई सी कि बहुत सारे वानबी एंटरप्रेन्योर या एंथुसियास्ट का ये फाइनेंशियल लिटरेसी वाला पार्ट प्रीटी मच इज ऑलमोस्ट जीरो मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये पैसे को कैसे घुमाना है, क्या करना है, व्हाट टू डू। यस नंदन प्लीज। Sir, if you ask me as a personal about a financial thing, what you think, and if you ask my friends about the financial thing, what they are thinking is to save some money and to spend it for their enjoyment, for their trips, and for their other things. But if you ask me, or if my mom asks me daily, like if you are spending 10 lakhs right now, what was your position, means I would only tell
to her, like if I'm spending the 10 lakhs and for that there will be a 3 rupees of interest, it would be an 3000 for 10 lakhs. What would be the I'm just and giving an example, what would be the 1 year? It would be 3 into 12. That's it. I'm going to give the interest for them. I'm not going to do anything, or I'm going to do it good thing. I would explain as my things. In your case, you are probably saying that I'm using money more for a good cause than a Yes, bad more cause. more for not me, more for my Yeah, things. yeah, Yeah. improving and like your, let's say, your Yes. business and things like that. Whereas your other colleagues and others are maybe earning It or depends upon spending. their things. Yeah, they're Yes. just spending just like that without understanding. So, एक question ये सौरव के लिए है. So Saurav, you are also, I mean, you're running this startup and all, and I think we go to a lot of colleges to encourage a lot of students that you should start young, you should start young. ये हम लोग बोल तो दे रहे हैं कि you should start young. तो start young में वो प्रोडक्ट वगैरह तो बना लेंगे. I think वो बनाना बचपन से ही करते हैं. But उनका थोड़ा सा आई गेस ये फाइनेंशियल लिटरेसी जब तक ठीक नहीं किया जाएगा, वो दे विल ऑलवेज हैव आई मीन स्केलिंग प्रॉब्लम. लाइक प्रोडक्ट बना लिया, उसको ये करना है, वो करना है, उसका कैश फ्लो मैनेजमेंट करना है, थोड़ा सा प्लस माइनस देखना है, ये है वो है. तो दैट वे आई बिलीव कि ये लाइक अगर हम लोग ये बोलते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स 8-9 से ही शुरू कर लेना चाहिए और बचपन से भी, तो वो थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें देना होगा, even from this startup point of view. What do you think, sir? I mean, when you ran, let's say, did you also run into this financial illiteracy for a while initially? मेरी आवाज आ रही है विशाल? आ रही है. ओके विशाल, मैं बाहर हूँ. यू वांट मी टू स्टार्ट माय वीडियो? No, I mean, I just let you choose. मैंने अगर मैं ऑफ कर दूंगा ना तो you cannot switch on also. Okay. So I just didn't want to force anything on you. Yeah, please. ठीक है. तो मेरे को देखिए, मेरे लिए ये बिजनेस फर्स्ट टाइम था. मेरे को कभी फाइनेंशियली, आई कम फ्रॉम अ फैमिली, मैं बिहार के फैमिली से, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे सब कुछ मेरे पापा करते हैं. चाहे बैंक में अकाउंट खोलना हो, चाहे बिजली का बिल देना हो, चाहे बेसिक चीजें भी करना हो, चाहे सब्जी खरीदना हो, वो भी मैं आज तक कभी नहीं लाया हूँ, बिकॉज पापा ने मेरे को बच्चा बना के रखा हुआ है. सो जब मैं पहली बार घर से बाहर निकला एंड आई वेंट टू बैंगलोर, जहाँ पे विप्रो में आई वाज रिक्रूटेड, कैंपस रिक्रूटेड एज अ प्रोजेक्ट इंजीनियर, और मेरे को कोडिंग करने दिया गया था. वो उस टाइम पे मेरे को फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल लिबर्टी मिला कि मेरे को 17,000 रुपए पर मंथ मिलता था सैलरी, और वो मैं कैसे खर्चा करता था. उसमें भी मैं 5,000 का वीपीएफ करता था, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड, अपार्ट फ्रॉम फ्यू एफडी और आरडी. तो शायद मेरे में ये इनबॉर्न था थोड़ा सा कंजर्वेटिव नेचर वाला, कि मैं बहुत ज्यादा खर्च करता नहीं हूँ. मैं खर्च करता हूँ तो बहुत क्वालिटी चीजों में करता हूँ, मैं ऐसी फालतू में चीजें खर्च करता नहीं हूँ. तो मेरे में शायद वो इनबॉर्न था फ्रॉम द डे वन, जहाँ पे मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिला. आई स्टार्टेड सेविंग मनी एंड मैंने इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के किया, और वही चीज शायद काम आया. करीबन 7 साल बाद व्हेन आई स्टार्टेड क्लियर देखो, तो वो सारा चीज मेरे को काम आया. क्योंकि क्लियर देखो का भी एक ऐसा टाइम आया था, मैंने शायद पहले भी बताया, कि हमारे पास पैसा नहीं था, बिल्कुल भी पैसा नहीं था, और 1.5-2 लाख रुपए का मंथली खर्चे थे. बट वी वर स्मार्ट इनफ और लकी इनफ, जो भी कहिए, कि हमें वो समझ था कि किस तरीके से एक एक रुपए को खर्च करना है और किस तरीके से ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम निकालना है. अगर बिजनेस एक डूब रहा है और बिजनेस ए को पैसा चाहिए, तो बिजनेस बी शुरू करो, ताकि बिजनेस बी से पैसे कमा के बिजनेस ए में पंप इन करो. तो शायद वो हमारे को समझ था, या हम कर पाए, जो भी आप कहिए, बट वी वर एबल टू मैनेज फंड्स प्रॉपरली. और आज भी जो हमारे 60+ आउटलेट्स हैं, ऑब्वियसली कोई भी स्टार्टअप, चाहे बड़ा हो छोटा हो, फाइनेंशियल बर्डन होता है, कैश क्रंच होता है. लेकिन टुडे आल्सो वी आर वेरी स्मार्ट इनफ टू मेक अ मॉडल जिससे हमें पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि मेरे सारे स्टोर्स प्रॉफिटेबल हैं या सारे स्टोर प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन इस तरीके से बिजनेस मॉडल बनाया गया है कि पैसा घूम के वापस आ जाता है. बाय द टाइम आई हैव टू पे टू द वेंडर्स, तब तक मेरे पास और पैसा आ जाता है. सो यू एज अ बिजनेसमैन, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, कि आप इंजन को घुमाना सीखो.
एक बार इंजन चल जाएगी फिर वो इनर्शिया से चलेगा। तो आपको एक बार घुमाना है और उसको बस कंटिन्यूअसली घुमाते रहना है, अपने आप स्पीड पकड़ेगा। आपको हर बार पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्लोप ढूंढना है, डाउनवर्ड स्लोप, उसके बाद इंजन अपने आप चलेगा। सो एज अ बिजनेसमैन, एज अ स्टार्टअप गाय, this is what I have to share. If you have any specific questions, I can answer. Yeah, sure, sure. I think so. Time over हो गया. Let's continue this fund management and banking, financial sector. और मेरा बस एक पॉइंट और है विशाल, जो आप लोग बोल रहे थे कि बच्चे को शायद पैसा देना चाहिए, उससे फंड लिटरेसी आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी। मेरा ये मानना है कि क्या पैसा देकर ही आएगा? क्या हम पढ़ा के उन्हें फाइनेंशियल लिटरेट नहीं बना सकते हैं? लेट्स से 10th क्लास का बच्चा है, तो क्या उसे 5,000 पर मंथ देना जरूरी है? हम क्या एजुकेशन नहीं, किताबी ज्ञान से नहीं आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज जरूरी है। ठीक है, इसको कल थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। I guess it has to settle somewhere in middle, maybe zero में भी नहीं होगा शायद, but 5,000 भी देने का जरूरत नहीं है, 100-200 दे। कुछ तो करना होगा, I guess. अदरवाइज 100 रुपए में 10 सिगरेट आ जाते हैं ना। नहीं, तो वो 100 रुपए का हिसाब भी लेना होगा उससे, जैसे एक बिजनेसमैन लेता है। तो कुछ ये इसी पे सोचते हैं एक्चुअली। देखो, I mean एक्सट्रीम जाना इज हर चीज कंट्रोल। जो एक बार और बात कर रहे थे हम लोग कि सब कुछ अगर रोक दिया तो आज नहीं तो कल वो बच्चा कर ही लेगा। तो फिर I mean यार देखो, मुझे ये कहना है कि इंडिया ना बहुत कंजर्वेटिव पेरेंटहुड है पूरे इंडिया में। तो इंडिया में सारे बच्चे को ना फ्रीडम दिया नहीं जाता है, बचपन से रोका जाता है, ये मत करो वो मत करो। तो जब बच्चे के पास 1 रुपए भी आएगा ना, तो वो 1 रुपए का कुछ गलत काम ही करेगा। मेरा बस ये कहना है। अच्छा, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और कॉर्पोरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, गुड नाइट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू, बाय। गुड नाइट।